سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسٹین اسٹاکر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے آج سانگھڑ اور بدین اضلاع کے لیے انٹرنیٹ کی سہولیات یقینی بنانے کے لیے 4 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ملک بھر میں انصاف تک مساوی رسائی کے آئینی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور اساتذہ اور طلباء سے قومی سلامتی اور ہائبرڈ جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آج کولمبو میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک اہم میچ میں پاکستان اور بھارت مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسٹین اسٹاکر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی دورے میں ان کے ہمراہ ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم فیڈرل چانسلر سے 2 طرفہ اور وفود کی سطح پر باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شہباز شریف اور آسٹریا کے وفاقی چانسلر دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے معروف کاروباری شخصیات کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم پاک آسٹریا بزنس فورم کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اور اقوام متحدہ کی ایک تقریب سے خطاب کریں گے جس کا موضوع ہے پائیدار ترقی، عالمی امن اور خوشحالی کا راستہ۔ وزیر اعظم انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 70 سال مکمل ہونے پر ہو رہا ہے اور اس سے 2 طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ صنعتوں کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے ملک میں آئی ٹی کے شعبے میں پیش رفت کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پاکستان کے صنعتی تکنیکی معاونتی مرکز میں AI سینٹر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ہارون اختر نے پاکستان کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے پاس اسٹارٹ اپ کاروبار کے ذریعے خوشحال بننے کا سنہری موقع ہے کیونکہ AI کے شعبے میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ نے آج سانگھڑ اور بدین کے اضلاع میں 4 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے گورنر ہاؤس کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں پر یونیورسل سروس فنڈ اور جیس کے تعاون سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ شہزہ فاطمہ نے کہا کہ منصوبوں سے ان اضلاع کے 18 لاکھ افراد استفادہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سانگھڑ اور بدین میں 400 کلومیٹر سے زائد رقبے پر فائبر لائنز بچھائی جائیں گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے ملک میں انٹرنیٹ سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملک بھر میں انصاف تک یکساں رسائی کے آئینی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات فورٹ عباس ضلع بہاول نگر کے جوڈیشل کمپلیکس کے دورے کے دوران کہی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کو فوری انصاف کی فراہمی عدلیہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے انصاف کی فراہمی کے لیے عدلیہ اور وکلاء برادری کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ چیف جسٹس نے خواتین کے لیے سہولت مراکز کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ مراکز خواتین کو بلا معاوضہ قانونی، سماجی اور نفسیاتی خدمات فراہم کریں گے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے ایک جامع منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔
वज़ीर आला ने ट्रैफिक पुलिस वन ऐप और सेफ सिटी मॉनिटरिंग ऐप का इजरा किया। उन्होंने कहा कि अवाम को ज़रूरत के वक्त पुलिस की मदद पर भरोसा करना चाहिए। इजलास में शिकायत के फौरी इजाले के लिए थानों के बाहर एक पैनिक बटन नस्ब करने का फैसला किया गया। तफ्तीशी अमल की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से भी फैसला किया गया। सूबे में FIR के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग निज़ाम शुरू करने का भी फैसला किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया और असातिज़ा और तलबा से बातचीत की। इस दौरान कौमी सलामती, हाइब्रिड जंग, नौजवानों के किरदार और जदीद दौर के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR ने HSN कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इन तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और तलबा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने इस तर्ज की मालूमाती मुलाकातों को सराहते हुए मुसल्लह अफवाज के साथ मजबूती से खड़े रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। ISPR के सरमाई इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कोयटा और गवादर के तलबा ने ग्वादर नेवल बेस और मेरीन ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। दौरे का मकसद शुरका को समुद्री सलामती की चैलेंजेस और पाक बहरिया की पेशा वराना जिम्मेदारियों से आगाह करना था। इस मौके पर तलबा ने मुतालियाती दौरे को सराहा और कहा कि ऐसे दौरे दिफाई इदारों की सलाहियतों को समझने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुतनाज़ा तराने वंदे मातरम को अखंड भारत और हिंदुत्व एजेंडे के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर हिंदू आबादी को भी मुतनाज़ा तराना वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इनकार पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। भारतीय अखबार द स्टेट्समैन के मुताबिक यूपी के मुसलमान मुखालिफ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वंदे मातरम की मुखालफत करने वालों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। मोदी हुकूमत के दौर में हिंदू इंतहा पसंद गैर हिंदू आबादी खुसूसन मुसलमानों को दबाने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान महाजरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तुर्की के डायरेक्टर जनरल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट के आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल उनके मुल्क में 42,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान महाजरीन को गिरफ्तार किया गया। तुर्क और अफगान खबरसां इदारों के मुताबिक तुर्की के सूबे एड्रन से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 18 अफगान महाजरीन को गिरफ्तार किया गया है। माहिरीन खदशात जाहिर कर रहे हैं कि एक तरफ तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस है, जबकि दूसरी जानिब गैर कानूनी अफगान महाजरीन मेज़बान ममालिक के लिए चैलेंज बन चुके हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ये बहरान जारी रहा तो उस वक्त तक इलाका सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बना रहेगा जब तक मौसर तर्ज हुक्मरानी और अफगानिस्तान से दहशतगर्द अनासिर का खात्मा नहीं हो जाता। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन पर पाबंदी से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर अपने कौमी नशियाती राब्ते पर उर्दू ज़बान के मारूफ शायर मिर्ज़ा गालिब की बरसी के हवाले से खुसूसी फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। शाम 4:30 बजे एक और कौमी प्रोग्राम में हफ्तावार सिलसिला रास्ता खुशहाली का के तहत एक खुसूसी मुज़ाकरा नशर किया जाएगा। मौजू है मकामी रोज़गार और तरबियत के प्रोग्राम। आज मुंबई में T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में वेस्ट इंडीज ने नेपाल को 9 विकेटों से हरा दिया। नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज ने मतलूबा हदफ 15.2 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का एक मैच अमेरिका और नामीबिया के दरमियान चेन्नई में जारी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच आज कोलंबो में शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। और मौसम के हवाले से आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कल से मंगल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में इंतहाई सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बास बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 25, कराची 30, कोयटा और गिलगित 18, मरी 16, मुजफ्फराबाद 21, जबकि श्रीनगर 9, जम्मू 23 और लेह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वियना रवाना हो गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुल्क भर में इंसाफ तक मुसावी रसाई के आईनी अज़्म का इआदा किया है। और आज कोलंबो में T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक अहम मैच में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।